Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate from the book of Lamentations, आज हम विलाप गीत से ध्यान करेंगे। chapter 3, verse 23. तीसरा अध्याय 23 वचन हम ध्यान करेंगे। They are new every morning, great is thy faithfulness. प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। We all know prophet Jeremiah is known as a weeping prophet. हम सब जानते हैं कि जो इर्मिया भविष्यवक्ता है वो रोने का भविष्यवक्ता है, And he wrote the book of Lamentations. और ये जो विलाप गीत है उन्हें लिखा था। When we see the context of this verse, ये जो वचन के जो संदर्भ हम जब देखे तो prophet Jeremiah was sitting in a desperate situation इर्मिया ने बहुत निराश परिस्थिति में बैठा था, because he is looking at Jerusalem. क्योंकि जो उन्हें यरूशलेम का स्थिति को देख रहा था। When we read what he said, उन्हें जो लिखा था उस बात को हम जब पढ़े तो surely our eyes also will be filled with tears. निश्चय रीति से हमारे आंख भी वो आंसू से भर जाते Yeah, it हैं। happened to me literally when I read for the first time. मैं पहली बार जब ये बात पढ़ा था मेरे आंख में आंसू आए थे। We all know the Babylonians under the leadership of Nebuchadnezzar invaded the kingdom of Judah 3 times. बबूल के जो नेबुकदनेस्सर था उन्हें इस्राएल के यरूशलेम के ऊपर 3 बार वो हमला किया था, And he took many people as captives. बहुत से बहुत लोगों को कैद में वो लेके चले गया था। And many of them are from king's palace. बहुत से बहुत लोग राजा के जो भवन से थे। And these Babylonians also looted and destroyed the temple. बाबुल के जो लोग थे वो यरूशलेम में जो मंडली था उसको वो लोग छीन के ले गए थे। People like Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसा लोग, and also people like Ezekiel and Mordecai and etc. They have gone to Babylonian captivity during these 3 invasions. और ये तो 3 बार उन्हें जो हमला किया था उस समय में ये नेबुकदनेस्सर और उसका जो हमले के समय में ये एजकेल और मुर्दके को भी लेके चले गया था। Many who are kept in the administration of Babylon were asked to stay in the palace. बबुलोन के जो पालन करने के जो लोग हैं राजभवन में रहने का उन लोगों को अधिकार दिया गया। And so these people, some of them are kept in the palace. इस लोगों में से थोड़े लोगों को वो राजभवन में लगा गया। Now, during those days there was a custom. उस समय में एक आचार था कि Because in the palace the queens and the concubines will be there of king. और राजभवन में राजा के जो भवन था उसमें रानी और उसके साथ में जो लोग रहते वो लोग रहते। Many ladies were there. वहाँ पे बहुत से बहुत स्त्रियां हैं, Because each king was having many wives. क्योंकि हर एक राजा को बहुत से बहु पत्नी थे। So there was a custom in those days. उस दिनों में एक ऐसा विषय था, If any man is kept in that palace, कोई बाहर वाले उस अंदर में वो राजा भवन में लगा they were made eunuchs. वो लोगों को उस समय में यूनुक्स को बना देते हैं। And future princes of Judah became captives now. और यूदा का जो भविष्य में राजा बनने का बेटे लोग थे वो लोग अभी आज कैद में गए थे। And they became eunuchs, they became slaves. और वो जो दास बन गए थे उस समय में और यूनुक्स बन गए थे। The other side of the truth is, और दूसरे सच्चाई की दूसरी बात ये है कि and the glorious city Jerusalem, which was thickly populated, became solitary like a widow. और महान जो यरूशलेम का जो शहर है अभी बहुत से बहुत भीड़ से था एक समय में, अभी वो खाली हो गया। And it is solitary like a widow. और वो जो पत्नी को विधवा बन गई। And we can read these things in the opening verses of the book of Lamentations. और विलाप गीत की आरंभ की पहला ये वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। See, once upon a time, एक समय में Jerusalem was called as the perfection of beauty. यरूशलेम को ये सौंदर्य नगर बोलकर बुलाते हैं। Kings and queens visited the holy city just to see the grandeur. और वो उसका जो सौंदर्य है उसको देखने के लिए राजा और रानी लोग वो लोग आके यरूशलेम को दर्शित किए थे। What type of city was this city of Jerusalem? यरूशलेम जो शहर है कि किस तरह का शहर है? David is saying in 48 Psalm verse 2, 48 अध्याय दूसरे वचन में दाऊद ने भजन संहिता में कहता है, Zion was the joy of the whole world. और सिय्योन जो है वो सारे संसार की वो प्रसन्नता है। Though the temple was not there during Davidic
times, और दाऊद के समय में, उस समय में ये जो मंडली था वो नहीं था, mandir. मंदिर नहीं था, And the ark of the Lord was kept in Zion. लेकिन परमेश्वर के जो संदूक है वो सियोन में लगाया था। And what he says in verse 3, तीसरे वचन में वो क्या कह रहा है? 48:3, 48 जाए और तीसरे वचन में, God is known in her palaces for a refuge. परमेश्वर ने उसका जो महल में वो अपने गढ़ा के से जान सकते So हैं। verse 5 says, 5 वचन में लिखा है, the kings marveled by seeing its splendor. और उसका जो वैभव है उसको देखने से राजा ने आश्चर्यित हुए। It is no secret that during King Solomon days, और सुलेमान के दिनों में the name and fame of Jerusalem, where the magnificent temple was built, spread throughout the globe. और सुलेमान के जो समय में जो मंदिर जो बनवाया गया उसका जो समाचार है वो सारे संसार में फैल गया। Great people like Queen of Sheba, etc., visited it. बहुत से बहुत महान लोग जैसा शेबा के रानी वो लोग भी देखने आए थे। So when Jeremiah saw the condition of the city, यिर्मयाह ने इस शहर का जो परिस्थिति था वो उन्हें जब देखा था, he could not control himself, he could only weep. वो कुछ अपने आप को अधीन नहीं कर सका कि वो खुद रोते हुए बैठा है। That's why this book is titled as Lamentation. उसी के कारण इस पुस्तक का नाम लिखा गया कि ये विलाप गीत है। Not only the children of the palace, but many Jews were taken as captives. और राजभवन के बेटा ही नहीं है, और यूदा में जो भी लोग हैं वो लोगों को भी कैद में लेके गए थे। Yeah, many people, they were taken very violently. बहुत लोगों को बहुत हिंसा करते हुए वो लोग लेके And गए, the city became a heap of rubble. और वो जो शहर था वो पूरा वहाँ पे कचरा हुआ कचरा जमा किया जैसा हो गया, And also the whole city was filled with dead bodies. और जो शहर पूरा भी मुर्दों से भरा हुआ है। And the sacrifices and the aromatic smell of their worship was replaced by the stench of the decaying bodies. और वहाँ पे भेंट चढ़ाना और दूसरी बातों का जो बास खाना है, लेकिन उस वहाँ पे मुर्दों का बास आना शुरू हो गया। Oh, now all the stenching smell of the dead bodies filled the city. वहाँ पे जो मुर्दे हैं वो लोगों का जो बास वो शहर में फैल हो गया। Not only that, वही बात नहीं some है, of the Jews are left behind in the city, थोड़े लोग यूदाई लोग ने वो शहर में छोड़ गए, and they were living in the utmost poverty. वो लोग ने बहुत कंगाल स्थिति में थे। They were starving. वो लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं था, Like beggars, they were searching in the rubble for food. और वो खाने के लिए उस कचरे में वो लोग ढूंढ रहे थे। They were fully broken. वो लोग पूरे टूट गए। Which real man and woman of God continue to be silent and not shed tears at such pathetic state? उस परिस्थितियों में कौन स्त्री और पुरुष बिना आंसू बहाए रह सकते हैं? What is the cure for such depression? उस परिस्थितियों में से छुटकारा क्या है? When the outlook, things around you is so bleak, और दूसरी आपके जो आजू बाजू में परिस्थिति है वो बहुत निराश परिस्थिति है, see, you are not in a position to face it. और वो आपको सामने करने के लिए भी आपको कुछ भी धैर्य नहीं है। So then the outlook is so bleak, it is always better to try uplook. बाहर जो भी स्थिति है हम जब देखें तो कुछ भी सहायता नहीं है, उस समय में आप परमेश्वर के ओर देख सकते हैं। Your outlook must become an uplook. और जो अंदर क्या जो आप स्थिति देखने का स्थिति है वो परमेश्वर के ओर देखने का स्थिति बनना चाहिए। Don't think of yourself or the situation around you. और आपके बारे में और आपके जो आजू बाजू में परिस्थिति है उसको देखना नहीं You चाहिए, cannot improve it. और आप उसको अच्छा नहीं बना सकते। But the uplook should make you to see the faithfulness and greatness of all powerful God. और परमेश्वर को और देखने से परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान स्थिति और विश्वास योग स्थिति को आप जान सकते हैं। Turn your eyes upon Jesus. यीशु मसीह के ओर आपका दृष्टि लगाइए। Why? क्यों? The answer is in today's promise. आज का वचन में उसका जवाब है, Great is thy faithfulness. तेरे सच्चाई महान हो। God is faithful in warning us. परमेश्वर ने हम लोगों को इच्छा Warning, देने, if we disobey God, what will happen? God will warn us. परमेश्वर को आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर क्या होता है वो उसके बारे में बताया है। At the same time, उसी समय में God is also faithful in doing what he warned. परमेश्वर ने जो किया था, जो बात बोला था वो करने के लिए भी वो तैयार है। But the silver lining of the cloudy situation, in that dark situation, what is the hope? उस कठिन परिस्थिति में, उस अंधेरा परिस्थिति में वो आशा क्या है? God is more faithful in loving and showing mercy. परमेश्वर ने उसका दया
दिखाने में, उसका प्रेम दिखाने में वो विश्वास योग्य परमेश्वर We है। have to turn away from our wicked ways. लेकिन हमारे जो दुष्ट मार्ग है उससे हम लोग को पलटना As चाहिए। individuals and as a church, we must turn away from wicked ways. व्यक्तिगत रीति से और कलीसिया की जैसे हम परमेश्वर की ओर पे फिरना चाहिए। When we see from another angle, हम दूसरी को कौन से देखे तो, दूसरी ओर से देखे तो Lamentations 3:22-23, विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन में it offers a message of hope, ये आशा की जो बात बता रहा a है। message of reassurance in the midst of a backdrop of immense sorrow and devastation. वहाँ पे बहुत से बहुत दुख परिस्थिति था, उसमें हम लोगों को आशा दे रहा We है। will see a little bit deeper into these verses. ये वचन को हम बहुत ध्यान करेंगे थोड़ा। Number 1, पहला है कि the faithful love of Yahweh. पर यहोवा की उसका सच्चाई प्रेम। The passage begins by proclaiming like this. ये वचन ये जो भाग है ऐसा आरंभ होता है कि Verse 22, 22 वचन, the faithful love of Yahweh never ceases. यहोवा का महारूप वो कभी भी ना रुकते। It reminds us of God's unwavering and steadfast love for His people. और परमेश्वर ने अपने प्रजाओं के लिए जो प्रेम है वो कभी भी ना बदलता है। Despite their disobedience and the dire consequences they faced, वो आज्ञा नहीं मानने से कितने क्लेश परिस्थिति वो लोग उठाए, God's love remained constant. लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है उसी रीति से है। This love is not conditional. तो ये जो प्रेम है वो शर्त क्या नहीं है, It is not temporary, but it endures forever. वो थोड़े दिन का नहीं है लेकिन हमेशा के रहने का है। So first of all, the faithful love of Yahweh. पहला है कि यहोवा के वो भी सच्चाई प्रेम। Secondly, दूसरा है कि His mercies will never come to an end. और उसका जो दया है वो उसको अंत नहीं है। In verse 22 it is written, 22 वचन में लिखा गया, His mercies never come to an end. और क्योंकि उसकी दया अमर है। Even in the midst of judgment and suffering. ये जो दंड की समय में और क्लेश परिस्थिति के समय में God's mercies are abundant and everlasting. और परमेश्वर के जो का दया है वो हमेशा की रहने का है। And His compassions and kindness are not depleted or exhausted. और परमेश्वर की दया और करुणा वो कभी भी ना हो जाता है। Instead, they flow continuously. लेकिन वो हमेशा के लिए बहता रहता है। Oh, they will meet our times of need. वो हमारे जरूरतों को वो पूरा करता है। And thirdly, और तीसरा they are है new every morning. और हर सुबह वो नया है। In the same passage it is written, they are new every morning. यही भाग में लिखा गया कि वो हर सुबह वो नया है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Each day brings a fresh outpouring of God's mercy and love. हर नया दिन वो परमेश्वर का नया करुणा और नया दया को लाता है। As the sun rises, जैसा like that His faithfulness also rises. जैसा सूर्य उत्पन्न सूरज आता है उसी रीति से परमेश्वर के दया अनुग्रह भी So आता है। this statement reminds us that God's grace and compassion are not limited by time or circumstance. ये जो वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर के जो वादा, परमेश्वर के जो बात है वो समय और परिस्थितियों से भी ऊंचा है। Each day presents an opportunity for us to experience and receive the unending mercy. हर दिन भी परमेश्वर की अनंत काल का जो दया है वो हम लोगों को पाने के लिए वो है। And the next thing is, और दूसरा है कि great is your faithfulness. और परमेश्वर तेरी सच्चाई महान So है। this verse concludes with an affirmation, great is thy faithfulness. और ये वचन ऐसा पूरा हो रहा है कि तेरे सच्चाई महान हो। So these words express the awe-inspiring nature of God's faithfulness. और ये जो वचन दिखा रहा है कि परमेश्वर की जो महान स्थिति है उसके बारे में दिखा रहा है। His faithfulness surpasses human comprehension. और जो परमेश्वर के विश्वास योग्य स्थिति है वो जो इंसान जो जान सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उससे भी बढ़कर है। His faithfulness is constant. और वो जो विश्वास योग्य स्थिति है परमेश्वर का, It is वो unwavering. कुछ भी नहीं बदलता है And also it is reliable. और उसके ऊपर आधारित हो सकता है। Even in the darkest times, we can trust in His faithfulness to sustain and guide us. और अपने जीवन की कई प्रकार की अंधेरे की परिस्थितियों में भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। So the book of Lamentations portrays the desolation and despair experienced by the Israelites following the destruction of Jerusalem. विलाप गीत ऐसा दिखा रहा है कि यरूशलेम शहर का जो दुस्थिति है उसके बारे में जो कंगाल परिस्थिति था वो उसको दिखा रहा है। Yet within the context of the deep sorrow, इस समय में इतनी दुख परिस्थिति में the author acknowledges God's steadfast love and faithfulness. और ये जो लिखा था उन्हें कह रहा है कि परमेश्वर के जो विश्वास योग्य स्थिति और परमेश्वर के जो प्रेम के बारे में कह रहा है। In the midst of this unimaginable pain, और ये जो हम सोच भी नहीं सकते उस इतनी दर्द में, and the people of Israel found solace
and hope. इस्राएल लोगों ने उसके मन में शांति और शांति पाए थे, Because they knew God's love never ceases क्योंकि परमेश्वर के जो प्रेम है वो कभी भी ना बदलने वाला and है, His mercies are endless. और वो परमेश्वर की दया वो अमर है। And they clung to the assurance that each new day brought an opportunity for a fresh experience of God's unfailing love and compassion. हर नया दिन नया अनुभव के लिए परमेश्वर के जो दया और प्रेम को अनुभव करने के लिए उन लोगों को सहायता की। So what does it mean for us today? आज हम लोगों को ये क्या दिखा रहा है? Oh, these verses serves as a powerful reminder of God's faithfulness in our life. ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर की जो शक्तिशाली विश्वास योग्यता है वो दिखा रहा है। And it reassures us that His love is constant. वो फिर से ये बीमा दे रहा है कि परमेश्वर के जो प्रेम है वो स्थिर है, His mercies are inexhaustible. और जो परमेश्वर के दया है वो अमर है। No matter what challenges or trials we may face, और हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति और क्लेश परिस्थिति हम लोग देखते we हैं, can find hope and comfort in knowing that His faithfulness is great. परमेश्वर के जो विश्वास योग्यता वो महान है, इसको जानने से हम लोगों के जीवन में आशा मिलता है, And His love is unwavering. और परमेश्वर के जो प्रेम है वो ना बदलने वाला है। This passage also calls us to respond with gratitude and trust. ये वचन ये भी बता रहा है कि ये सब बात दिखाना है कि हम धन्यवाद करते हुए हम उसके सामने आना We है। are invited to recognize and appreciate God's faithfulness in our lives. अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वास योग्यता स्थिति को हम जानना चाहिए। Each day as we wake up to new mercies, हर दिन हम नया दया पाते हैं, and we can approach Him with gratitude and surrender. और कृतज्ञ और धन्यवाद करते हुए हम उसके प्रस्तुति में आ सकते हैं, And we must know that His love and faithfulness will sustain us. और उसका प्रेम और उसके दया हम लोगों को आगे चलाता है। Before I close, मैं पूरा करने से dear पहले brothers and sisters, हमारे प्रिय भाई और बहनों, how is your life today? आपके जीवन कैसे है आज? By disobeying God's clear principles and instructions, परमेश्वर के जो नियम और जो आज्ञा है उसको उल्लंघन करके have you gone away from God? और आप परमेश्वर से दूर हो गया Have क्या? you become a captive to any habit or situation? और कुछ काम के लिए और कुछ व्यसन के लिए आप दास बन गए क्या? Remember, by thinking about that habit or situation, you will further worsen your condition. उस परिस्थिति के बारे में, वो आपके जीवन में जो आदत है उसके सोचने से आप और अधिक परमेश्वर से दूर होते रहते So हैं। look unto Jesus once again. उसके कारण ना फिर से परमेश्वर के ओर देखिए, Confess your failure. आपके जो गिरे हुए स्थिति को परमेश्वर के सामने मान He लीजिए। is faithful to forgive and restore you. परमेश्वर आपको फिर से पुनर्स्थिति में लाने के लिए वो विश्वास योग्य है, Great is His faithfulness. उसका सच्चाई महान है। May God help you to set right those things which are against Him in the early years of this day. परमेश्वर के जो विरोध में जो चीजें परमेश्वर के साथ में अच्छा करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। So may God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Great is God's faithfulness. परमेश्वर की जो सच्चाई है वो महान है। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, no doubt we are worthy for judgment and punishment. हम दंड की आज्ञा के लिए और सजा के लिए सही है। Not only the condition of those Israelites and Jewish people was pathetic, इसराइल लोगों का और युद्धाओं प्रजाओं का, उन लोगों का स्थिति वैसा ही नहीं है, but oh Lord, we thank you, oh Lord, because of thy faithfulness. लेकिन प्रभु जी आपका विश्वास योग स्थिति के लिए हम लोग धन्यवाद They were करते हैं। taken into captivity. वो कैद में गए थे, They were like destitute. वो लोग अकेले बन गए थे, But oh Lord, we thank thee, thy faithfulness never left them. लेकिन परमेश्वर आपके जो विश्वास योग्यता है हम लोग को कभी भी वो छोड़ा ही नहीं है। Because of your great name. आपका जो महान नाम की Oh, वजह that is से a great tower for us. वो बहुत हम लोग को आश्रय देने वाला है। Thank you for speaking to us. हमसे जो बात आप किए थे उसके लिए धन्यवाद। Help us to go forward by leaning on to your faithfulness. आपके विश्वास योग्य स्थिति के ऊपर आधारित होकर हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।